Hello students, today we will see second part of this chapter, federalism. Today we will see from what makes India a federal country. We have three type of lists and powers are divided among governments. Union list, state government is allowed to make laws on the subjects which are included in union list. Whereas in state list, all those subjects are included which are of state importance and state government is responsible to make laws. This is concurrent list. All those subjects are included which are important for both center and state. Here both center and state government can make laws, but if there is any confusion, if there is any dispute between center and state government, then whatever is finalized by central government, that will be acceptable. So here, according to the importance of subject, it is divided into three lists: union list, state list and concurrent list. Besides these three lists, there is another list, fourth one you can say, that is called residuary powers or residuary subjects. Residue means whatever is left, जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो इस फोर्थ लिस्ट में आते हैं, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए वो सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एटसेट्रा. दिस इज दे आर इंक्लूडेड इन residuary powers. After that, we have in India we have some exceptional cases, though they are now no more available because in Jammu and Kashmir situation has been changed. With the help of new law, whatever special importance, preferences were given, benefits were given to Jammu and Kashmir, that are removed, and now Jammu and Kashmir is not getting any special advantage of state. Now it is divided into two union territories. Now there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state. कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जो कि छोटे एरियाज हैं, so they are not called state, they are considered as union territories. These union territories like Delhi, they are directly controlled by the central government. Lieutenant governor is appointed by the central government and they look after the administration of union territories. Chandigarh is another example of union territories. Now it is not easy to make changes to this power sharing. अभी हमने देखा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूअरी powers are divided among various governments like central government, state list. If there is any change required in subjects, so it is not possible to change immediately, or it is not possible to change by one level of government. For that, majority should be in favor. 2/3 majority should be in favor of that change in the parliament. Then only that change is possible. Otherwise, it is not possible to make any change in this power sharing system. Now we have one important organ in our system, that is judiciary. If there is any confusion, dispute, किसी भी तरह का झगड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट को लेके या किसी और कारण से, सो फॉर टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए जुडिशरी सिस्टम है हमारे पास, उसे उसकी हेल्प से वट एवर इज डिसाइडेड बाय जुडिशरी दैट विल बी एक्सेप्टेबल. सो वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्टेट लेवल पे स्टेट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एट नेशनल लेवल. So finally, whatever is decided by Supreme Court, that will be acceptable by all. So it is a separate, independent, autonomous organization. Then the union and state governments have the power to raise resources by levying taxes. Central government, state government, both have right to
इम्पोज सम टैक्सेस, वो अलग अलग तरह के टैक्स लगाते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी जैसे इनकम टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगाएगी जैसे एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स होता है। तो इस तरह से वो जो इनकम गवर्नमेंट के पास आती है उसको वो अलग अलग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चे होते हैं उससे उसको मेंटेन करती है। देन हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हमारे यहाँ फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो किस तरह से प्रैक्टिकली काम में आता है उसको हम देखते हैं। इफ यू सी दीज टू मैप्स, दिस इज द मैप ऑफ 1947 and this map when before 1947 when Britishers were ruling and some areas were ruled by prince. So in this way here you will find, if you compare these two, you will find some differences. Before 1947 you will find that state boundaries are not clearly marked. न ब्रिटिश प्रोविंसेस के बाउंड्रीज क्लियरली मार्क हैं और न ही जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज क्लियरली मार्क है। बट आफ्टर 1947 यू फाइंड दैट ऑल द स्टेट बाउंड्रीज आर वेरी क्लियरली मार्क्ड कि कहाँ तक किसकी बाउंड्री है, किसका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, किस डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, किस स्टेट का रहेगा, ये बिल्कुल क्लियरली डिसाइड कर दिया 1947 के बाद में। आफ्टर दैट नाउ वाइल फॉर्मिंग स्टेट्स, जो हमारे कंट्री में इतने सारे स्टेट्स बने हैं स्पेशली आफ्टर 1947, तो उसमें जो सबसे बड़ी पॉलिसी यूज की गई दैट वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टेट। जहाँ पे मलयालम लैंग्वेज थी उसे एक स्टेट बना दिया केरला, जहाँ पे तमिल लैंग्वेज पॉपुलर थी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर स्पीकिंग तमिल, उसे तमिलनाडु बना दिया। सो लाइक दिस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसका ये मतलब नहीं कि सारे स्टेट इसी मेथड से बनाए गए, नहीं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है और वहाँ बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। वहाँ हमारे पास 7 स्टेट्स हैं छोटे छोटे, और वो आपस में कई बार उनमें लड़ाई हो जाती थी, तो उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्टेट बनाए। तो वहाँ पे ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से स्टेट्स बने, जैसे नागा ट्राइबल पीपल, उनके लिए बनाया नागालैंड। इसी तरह से दूसरे स्टेट्स, तो वहाँ पे ये पॉलिसी नहीं है। वहाँ पे पॉलिसी जो काम आई है वो है ट्राइबल पीपल की डिमांड क्या थी। सो ऑन दैट बेसिस स्टेट्स वर फॉर्म्ड एंड दैट स्टेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल, 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Second, language policy. In India, you will find that Hindi is the most popular language. Around 40% people speak Hindi. So it was decided that Hindi will be one official language of India. And besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages. इसके अलावा 21 दूसरी लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज कर गई है। इसका मतलब टोटल लैंग्वेजेस, शेड्यूल्ड रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हमारे पास 22 हैं। कई बार एग्जाम में आता है एंड स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक, दे राइट 21। सो 21 प्लस हिंदी, सो इट विल बी 22। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, उसमें ये थर्ड पॉइंट आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इन द सेंटर बीजेपी गवर्नमेंट इज रूलिंग, इन द स्टेट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर रूलिंग, लाइक इन दिल्ली आम आदमी पार्टी, सिमिलरली इन अदर स्टेट्स दूसरी पार्टी काम कर रही है, बीजेपी भी काम कर रही है। सो मेनी टाइम्स वी फाइंड दैट देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में डिस्प्यूट कई बार देखने में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया, स्टेट गवर्नमेंट उसे मानती नहीं है, या स्टेट कुछ चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहती है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ स्टेट के हाथ में है, तो डिस्प्यूट रहता है। सो देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफरेंट। बट इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम, like in Madhya Pradesh and
central government parties are same. Uttar Pradesh and central government parties are same, BJP. So you will find better coordination. But when parties are different, you will find that there is dispute. So ये एक प्रॉब्लम रहती है सेंटर स्टेट रिलेशंस में. Then after that, next topic is decentralization in India. Decentralization, ये वर्ड है सेंट्रलाइजेशन का उल्टा. यानी पावर्स जब हम एक इकट्ठी रहती हैं तो उसे सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, और जब पावर्स को हम बांट देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. यू विल फाइंड दैट इन इंडिया वी आर फॉलोइंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. You'll find that when power is taken away from central government and state government and given to local government, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेके हम जब लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब लोकल गवर्नमेंट को हम क्यों पावर दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है. इसके पीछे कई सारे रीजन हैं. इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीजन है. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल. कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोकल लेवल पे अच्छी सॉल्व की जा सकती है. इंडिया इज अ बिग कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन सारी प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं सॉल्व कर सकती है. कई छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे हमारे घर के सामने रोड नहीं है, रोड डैमेज है और उसकी रिपेयर करानी है, तो इतने बड़े कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिपेयर कराने में उसको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बड़े काम भी होंगे. स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे इस तरह के काम हैं. तो ये छोटे छोटे जो काम हैं, सो दैट आर बेस्ट सॉल्व एट लोकल लेवल. सो कुछ उन्हें लोकल गवर्नमेंट को फंड दिया गया ताकि इस तरह के जो लोकल लेवल पे कुछ छोटे छोटे काम हैं वो इजीली किए जा सके. देन पीपुल हैव बेटर नॉलेज. अब वो लोकल लेवल पे सोल्यूशन अच्छा क्यों होता है? लोकल लेवल पे सोल्यूशन अच्छा इसलिए होता है क्योंकि लोकल लोगों को अपने एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होती है और उनको ये भी ज़्यादा अच्छा पता होता है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इसलिए उनको कुछ फंड देने से, पैसा देने से उस प्रॉब्लम्स को वो इजीली अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं एंड इन वेरी लेस टाइम इट कैन बी सॉल्व. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट. देन इक्वल डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज. लोकल एरियाज के वहाँ पे जो भी इलेक्टेड पीपल हैं दे कैन डेवलप, लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया. देन लोकल गवर्नमेंट बिफोर. अब हम बात करेंगे 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम थी और 1992 के बाद में क्या चेंजेस आए और उससे क्या फ़ायदा हुआ. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए भी. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. सबसे पहली प्रॉब्लम, लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होता था वो इलेक्शन रेगुलर नहीं था. कभी हो गया, कभी जो टाइम स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा टाइम हो गया, रेगुलर नहीं होता था. बट आफ्टर 1992 इलेक्शंस बहुत रेगुलर हो गए. ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, चेंज जो आया 1992 के बाद में. A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended, चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लेवल जो है वो है लोकल गवर्नमेंट. तो ये चेंज जो किया गया आफ्टर 1992 किया गया. देन नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन. अभी भी मैंने बताया आपको कि पहले इलेक्शन नहीं हो पाते थे. 1992 के बाद ये कंपलसरी कर दिया गया कि इतने टाइम के बाद में इलेक्शन लोकल लेवल पे होगा. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट में भी के लिए भी इलेक्शन होंगे. उसके बाद सीट्स आर रिजर्व वुमेन, SC, ST,
इस तरह से सीट्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वो था कि सभी को, इवन वीकर सेक्शंस also got proper representation. Then at least 1/3 of the positions are reserved for women. Many times in Lok Sabha also bill was introduced that women should get 1/3 reservation. लेकिन वो अभी तक पास नहीं हो पाया सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में. But at local level, in local government 1/3 seats are reserved for women. ये एक बहुत बड़ा काम था जिसे इम्प्लीमेंट किया गया. एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन. अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराती है उसको ये क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको बिल्कुल स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में रेगुलर इलेक्शन लोकल लेवल पे कराने ही हैं. सो देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम नाउ जहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन जो कि पंचायती राज सिस्टम में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए रेगुलर इलेक्शन कराने के लिए कहा गया. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट के काम करने के लिए उन्हें कुछ फंड दिए जाते थे, तो वही है यहाँ पे शेयर्ड रेवेन्यू विथ लोकल लेवल. उनको जो फंड दिए जाते थे ताकि वो लोकल लेवल पे कुछ काम करा सकें. देन पंचायती राज सिस्टम, वी कैन अंडरस्टैंड लोकल रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज सिस्टम. तो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट होती है उसे हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं. Now if you see this flow chart, you can understand the complete division of power from top to bottom in India. सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट या कह सकते हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हर स्टेट में एक गवर्नमेंट है और उस स्टेट में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. एक है पंचायती राज और दूसरा है म्यूनसिपैलिटी. ये पंचायती राज सिस्टम ये मेनली रूरल एरिया के लिए है और ये अर्बन एरिया के लिए. इन पंचायती राज सिस्टम जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये सबसे छोटा जो विलेज लेवल है पंचायत, ग्राम पंचायत. ग्राम का मतलब भी होता है विलेज, गांव, और इसके ऊपर हम जाते हैं कई गांव को मिला के वो बन जाती है पंचायत समिति, और ये जब इसमें कई सारी समितियां मिल जाती है तो वो बन जाता है जिला परिषद. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया. सो ये पूरा जो सिस्टम है ये वाला, इसे हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम. इसमें बेसिकली रूरल एरियाज और जो अर्बन एरियाज में है वो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत. इनके अपने पॉलिटिकल हेड्स हैं जो कि रेगुलर इलेक्शन में इलेक्ट होके आते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल. सो ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी. इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन such an officer is called the mayor. Mayor, this is very important for 1 mark question. जो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उसे हम मेयर कहते हैं. इम्पॉर्टेंट फॉर 1 mark question. So in this way we have seen many aspects of this chapter and we have seen that how power is shared at different levels of the government. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसमें कैसे कैसे पावर्स को हमने बांटा है, ये सारा कुछ हमने इसमें चैप्टर में देखा है. आई होप you will be able to understand this chapter nicely. Thank you. Have a nice day.